Hello students. Today I am going to discuss about question number 1, 2 and 3 of exercise 1.2 plus 2 NCERT mathematics. Now what about question number 1? I have already discussed about 1 1 on 2 and 1 1 correspondence. लास्ट लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया था आपके साथ. What is the meaning of 1 1, what is the meaning of on 2 and what is the meaning of 1 1 correspondence. Now depending upon these three, I am going to start with the exercise. Now what about the question f, that is function, is from R to R. Now what is the meaning of this one? This one is set x and this one is set y, or you can say that this one is domain and this one is codomain. These are the two contents. For the definition of domain and codomain, you can watch the other videos related to this one. I have already explained in the previous videos. Now the definition of fx is 1 over x. If I have to work on 1 1, suppose I am writing fx1 is equal to fx2, then I can write 1 over x1 is equal to 1 over x2, implies that x1 is equal to x2. If fx1 is equal to fx2, if I am starting from this point, अगर यहाँ से हम start करते हैं तो output हमारी आ जाती है x1 is equal to x2, then function is 1 1. तो ये function 1 1 बन जाएगा. और अगर मैं second part की बात करूं, on 2 में हमें क्या करना है, जो fx है उसको y के इक्विवेलेंट रख दो. अब fx की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 over x is equal to y, और यहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट कर लो. x is equal to 1 upon y. अब यहां पे इंसर्ट कर दो f 1 upon y. अब इसका आंसर क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन y, लाइक दिस. आंसर इज इक्वल टू y because fx is equal to 1 upon x. If I insert in place of x, you have to insert the value here. f1 upon y, if I insert 1 upon y here, 1 divided by 1 upon y, answer is equal to y. If I am getting this value, it means function is onto. Now, if I am talking about the first part, what is the question here? This one is the content. fx is equal to 1 upon x is 1 1 and onto. It's proved to be true. And what about the second value? If the domain R is replaced by natural numbers and codomain being same as R. Okay, let us discuss this one. That is the second part. Now domain is set of natural numbers 1, 2, 3 up to so on infinity. This one is domain of the function. These are natural numbers. And what about second one? It comprises of 1, 2, 3 up to so on infinity. Negative numbers are also there, -1, -2, -3
up to so on minus infinity. This one is also there. Fractional numbers are also there, 1 over 2, 1 over 3, 1 over 4 up to so on. This one is codomain of the function, that is real number. Basically this one is the combination. If I am talking about fx is equal to 1 upon x. Now if I insert any value 1, suppose I am inserting 1, answer is 1. If I am inserting 2, answer is equal to 1 upon 2. This one is the combination. And what about the third one? If I am inserting 3, answer is equal to 1 upon 3. It means clearly the function is 1, 1. Now, what about the second case? If I am talking about aunt, that is the second part to prove. From codomain, if I am picking 1 over 2, answer is equal to 2. 2 is present inside domain. 2 is there inside domain. If I am talking about 2 in codomain, 1 over 2 is absent. This one is not there in domain of the function. And similarly for 3, 1 over 3 is not present. Means 1 over 2. If I am talking about this one, 2 is present. If I am talking about 3, 1 over 3 is present. But if I am talking about 3, 1 over 3 is not present here. 1 over 3 is required here, but it's not present inside domain of the function. It means function is not onto. Now what about the answer? If I am talking about first part, in first part it's okay that the function is 1, 1 and onto. What about the second part? If the domain R is replaced by natural number and codomain being same as R, then function is only 1, 1, not onto. Now what about the second question? If I am talking about the second question, all the questions are almost similar. You can practice at your own level. Check the injectivity and surjectivity. Now what is the meaning of injective? I have already explained inside the previous video. Injective means 1, 1. And what is the meaning of surjective? Surjective means onto. We have to check whether the function is 1, 1 or onto. If I am writing here f n arrow n, what is the meaning of this? This n stands for domain of the function and this n stands for codomain of the function. If I am designing two sets like this one, 1, 2, 3 up to so on, you can write infinity here. What about second set, 1, 2, 3 up to so on infinity? These are the natural numbers. This one is domain of the function and this one is codomain of the function. Codomain of the function. You can write this function as x and this function as y, and you can write here f from x to y. Okay. Now, if I am talking about 1, 1, I am writing here fx1 is equal to fx2 and the statement is fx is equal to x square. It means I can write x1 square is equal to x2 square and x1 square minus x2 square is equal to 0.
then x1 minus x2, x1 plus x2 is equal to 0. It means either x1 is equal to x2 or x1 is equal to minus x2. These are the two conditions. अब ये कंडीशंस डेवलप हो गई. फर्स्ट वन, अगर फर्स्ट वन जीरो है तो x1 x2 के इक्वल आ जाएगा. अगर सेकंड वैल्यू जीरो है तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आ जाएगा. बट हमारी कंडीशन क्या थी? अगर 1 1 को प्रूव करना है, अगर fx1 fx2 के इक्विवेलेंट है तो x1 x2 के इक्विवेलेंट आना चाहिए. तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस वन इज 1 1. And one more thing is there. If I am talking about two sets, यहां पे मैंने मेंशन किया 1 2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, यहां पे भी 1 2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी. अगर मैं बात करूं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैंने यहां पे इंसर्ट किया 1, यहां से वैल्यू उठा ली, तो 1 का आंसर आ जाएगा यहां पे 4. मींस f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. अगर मैंने इंसर्ट किया 2 तो f ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी 4. अगर मैंने इंसर्ट किया 3 तो f ऑफ 3 की वैल्यू आ जाएगी 9. मींस ऑल द वैल्यूज आर देयर इनसाइड कोडोमेन and 1 2 3 are there inside domain. This one is true. And what about onto? अब यहां पे एक प्रॉब्लम आएगी onto में. नेगेटिव वैल्यू के साथ यहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है. अब अगर मैंने यहां से कोई भी वैल्यू उठा ली, onto की कंडीशन क्या है कि जो आपके पास y की वैल्यू है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, there should be one value in x. अब x में उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए. अगर मैं वैल्यू 1 की बात करता हूं तो 1 का मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, मेरे पास 1 है, कोई इशू नहीं है. 1 वैल्यू x में प्रेजेंट है. बट अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 का स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास बन गया 1.414. ये वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट नहीं है x में. इट्स नॉट प्रेजेंट इनसाइड x. इट मींस सिमिलर टू अदर वैल्यूज, और भी बहुत वैल्यूज हैं. 3 का स्क्वायर रूट भी वहां पे नहीं है. इट मींस द फंक्शन इज नॉट onto. ये फंक्शन onto नहीं है. दिस फंक्शन इज ओनली 1 1. अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की. सेकंड स्टेटमेंट में हमारे पास है z एरो z. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ z? z स्टैंड्स फॉर इंटीजर वैल्यू. अब इंटीजर वैल्यू का क्या मीनिंग है कि आपके पास पॉजिटिव वैल्यू भी है, नेगेटिव वैल्यू भी है, जीरो भी है. पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ऑल द वैल्यूज आर देयर. अब यहां पे हमने सेट डेवलप किया. 2 सेट्स आर देयर, 1 2 3. यहां पे मेंशन किया -1 -2 -3 लाइक दिस. यहां पे हमने मेंशन कर लिया 1 2 3 4. यहां पे -1 -2 -3 -4 लाइक दिस. पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल द वैल्यूज आर देयर, बिकॉज यहां पे भी z है, यहां पे भी z है. मींस ऑल द वैल्यूज आर इंटीजर. दिस वन इज x एंड दिस वन इज y. अब मैं बात कर रहा हूं फंक्शन फ्रॉम x टू y, इसकी बात कर रहा हूं. अब हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो क्या है? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. मैंने कोई वैल्यू इंसर्ट की, मैंने इंसर्ट किया 1, मेरे पास आंसर आ गया 1. अब मैंने इंसर्ट किया -1, मेरे पास अगेन आंसर आ गया 1. इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं 1 इंसर्ट करता हूं तो मेरे पास यहां पे 1 के साथ कॉम्बिनेशन आ जाता है. -1 इंसर्ट करता हूं फिर भी वहां पे 1 का कॉम्बिनेशन आ गया. इट मींस -1 और 1 दोनों की प्लेस पे आंसर जो है सेट y में वो 1 ही आ रहा है. इट मींस इट्स नॉट 1 1.
ये तो मैनी वन का कॉम्बिनेशन हो गया ना, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। इट्स नॉट 1 1, ये 1 1 की कंडीशन को फॉल्स कर गया, जिसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव। इट्स नॉट इंजेक्टिव, जो स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है। स्टेटमेंट में हम यहां पे मेंशन किया चेक इंजेक्टिविटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजेक्टिविटी? 1 1, इट मींस इट्स नॉट इंजेक्टिव। इंजेक्टिव में क्या होना चाहिए कि अगर सिंगल वैल्यू यहां पे प्रेजेंट है तो सिंगल ही आंसर आना चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज के लिए सिंगल आंसर नहीं होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं मैनी वन, इट्स नॉट 1 1। अब जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है? अगर मैं बात करता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जो एक्स स्क्वायर है वो सेकंड में एग्जिस्ट कर रहा है और x की वैल्यू फर्स्ट में एग्जिस्ट कर रही है, मींस x में एग्जिस्ट कर रही है। अगर मैं 2 की बात करूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख लिया यहां पे मैंने, और x की वैल्यू मैंने डाल दी, और जो सेकंड वैल्यू है वो डाल दी 2। 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 2। ये तो x की वैल्यू है ही नहीं, ये तो फर्स्ट सेट में प्रेजेंट ही नहीं है। इट मींस इसको हम बोलेंगे इट्स नॉट ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं है। इट मींस अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एफ आर टू आर मींस बोथ द वैल्यूज आर रियल एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने दो सेट ले लिए, फर्स्ट सेट उसके बाद सेकंड सेट। अब रियल वैल्यूज की बात कर रहे हैं। दिस वन इज सेट एक्स एंड दिस वन इज सेट वाई। मैंने यहां पे कुछ नंबर्स ले लिए रियल में, 1 -1 2 -2 लाइक दिस। यहां पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4, और यहां पे 1 ओवर में लिख लिया, कुछ फ्रैक्शन में वैल्यूज ले ली, 1/2 1/3 लाइक दिस। कोई भी वैल्यूज आप ले सकते हो बिकॉज कंटेंट इज रियल। अब मैंने अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे मैंने ले लिया f1, तो मेरे पास आंसर आ गया 1। फिर मैंने यहां पे मेंशन किया f ऑफ -1, तो मेरे पास अगेन 1 आ गया। अब 1 की आउटपुट 1 आ गई मेरे पास। अगर मैंने -1 इंसर्ट किया तो भी आउटपुट मेरे पास 1 आ गई। अब ये 1 1 का क्राइटेरिया फेल हो गया, फंक्शन इज नॉट 1 1, और यू कैन से नॉट इंजेक्टिव। ये इंजेक्टिव की कंडीशन को फॉल्स कर गया। अब जो सेकंड कंडीशन है मैंने यहां पे मेंशन किया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y क्या है? y सेकंड की वैल्यू है, x फर्स्ट की वैल्यू है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने इसको कर दिया रिवर्स, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y। अगेन आई एम इंसर्टिंग द वैल्यू। मैंने वैल्यू को इंसर्ट किया। अब वैल्यू की इंसर्शन क्या है? जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो मैंने इंसर्ट कर दी। y की वैल्यू मैंने उठा ली, कोई भी वैल्यू, मैंने y की वैल्यू ले ली 2, जो सेकंड वाली वैल्यू है, जो यहां पे मेंशन है। अब x की वैल्यू मेरे पास आ गई स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 को प्रेजेंट होना चाहिए था फर्स्ट सेट में, बट फर्स्ट सेट में ये वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। इट मींस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अब ना तो ये फंक्शन 1 1 है, ना ये फंक्शन ऑन टू है। ये थर्ड वाला कंटेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। अब यहां पे कंडीशन है नेचुरल नंबर की। अब नेचुरल नंबर में क्या क्या कंटेंट होगा? अगर मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं और सेकंड की बात कर रहा हूं, यहां पे मेंशन कर दिया x, यहां पे y, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, और सिमिलरली 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। कोई भी नंबर ये जनरेट हो सकते हैं। अब स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मैं क्यूब की बात कर रहा हूं। यहां पे मैंने मेंशन कर दिया f1, मेरे पास आंसर आ गया 1।
फिर मैंने मेंशन किया f ऑफ -1, -1 हम पुट नहीं कर सकते, नेचुरल नंबर में नहीं है। सपोज मैंने यहां पे वैल्यू पुट की f2, तो मेरे पास आंसर आ गया 8। फिर मैंने 3 पुट किया, मेरे पास आंसर आ गया 27। अब 1, 8 एंड 27 ऑल द नंबर्स आर देयर इनसाइड दिस। 1 के साथ कनेक्टिविटी हो गई 1 की, 2 के साथ कनेक्टिविटी हो गई 8 की, उसके बाद 3 के साथ कनेक्टिविटी हो गई 27 की। इट मींस आई कैन क्लियरली इंडिकेट दैट द फंक्शन इज 1 1। उसके बाद अगर मैं ऑन टू की बात करूं तो ऑन टू में क्या होना चाहिए? ऑन टू, अगर मैं सेकंड सेट में से एक नंबर उठा लेता हूं 2, 2 बिलोंग्स टू y। अब 2 का अगर मैं क्यूब रूट लूं तो ये नंबर x में होना चाहिए, ये x में नहीं है। इट मींस सिमिलरली फॉर टू मैनी अदर नंबर्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 3 बिलोंग्स टू y, देन क्यूब रूट ऑफ 3 इज नॉट प्रेजेंट इन x। अब इसका क्लियर कट जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या बन रही है कि ये 1 1 तो है, इट्स 1 1, बट नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। मींस 1 1 का क्या मीनिंग हो गया कि ये इंजेक्टिव है बट सर्जेक्टिव नहीं है। दिस वन इज पार्ट नंबर 4। और अगर हम बात करें पार्ट नंबर 5 की, तो यहां पे इंटीजर का कंटेंट आ गया, यहां पे कंटेंट आ गया f z to z। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट z? 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी आप मेंशन कर सकते हो। यहां पे -1 -2 -3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। दिस वन इज सेट x। and what about the second one? This one is again the same set 1 2 3 up to so on infinity, and -1 -2 -3 up to so on minus infinity. These are the values of y, and this one is domain of the function and this one is codomain of the function. Now what about the values? The function is fx is equal to x cube. If I am talking about 1, answer is equal to 1. This one is present. 1 in combination with 1, this one is present. What about f of -1? -1 cube. This answer is -1. The answer to -1 is -1. This one is again present. What about f2? Answer is equal to 2 cube. Answer is equal to 8. For 2, there is presence of 8 inside codomain, and f of -2, it's -2 cube. Answer is equal to -8. Now what is the meaning of this? For distinct values in x, there is a distinct value inside y. It means function is 1 1. Now what about onto? अगर मैं onto की बात करूं तो again same condition is there. If I am writing fx is equal to x cube, or I am writing y is equal to x cube, this one is there for 2. Suppose I am picking 2 from y, then cube root of 2 doesn't exist inside x. Similarly for other numbers. What is the meaning of this? It means this function is not onto, that is not surjective. Means injectivity is there but not surjective. This content is not there. Now what about question number 3? Okay, first of all, what is the meaning of greatest integer? Greatest integer. इससे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है, कैसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को यूज करते हैं। ये कंटेंट पहले क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैंने यहां पे मेंशन किया fx इज इक्वल टू x ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब मैंने वैल्यू इंसर्ट कर दी यहां पे 1।
1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहां पे 1 आ गया। उसके बाद मैंने यहां पे लिखा f1.2, यहां पे 1.2 मेंशन किया तो इसका आंसर भी 1 आ गया। फिर मैंने लिखा 1.98, अब इसको मैंने रिप्रेजेंट किया, इसका आंसर भी मेरे पास 1 आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर आप इंटीजर वैल्यू लेते हो, इंटीजर वैल्यू का आंसर सेम आएगा, बिकॉज दैट वन इज इंटीजर वैल्यू, मीन्स इट्स नॉट डेसिमल वैल्यू। अब डेसिमल कंप्राइज ऑफ इंटीजर एंड फ्लोट वैल्यू। अब जो फ्लोटिंग कंटेंट है, जो डेसिमल कंटेंट है, वो आपने नहीं लेना। मीन्स डेसिमल के बाद की जो भी वैल्यू है उसको हमने पिक नहीं करना, उससे पहले वाली वैल्यू जो है हमारी वो रिप्रेजेंटेशन में आएगी। इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब कुछ कुछ आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां पे 1 और ऑन टू का कंटेंट होगा या नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, यहां पे कुछ वैल्यूज ले ली, यहां पे मैंने एक डिजाइनिंग कर ली, यहां पे मेंशन कर दिया 1, 1.2 एंड 1.98। मैंने कुछ वैल्यूज उठा ली, अप टू सो ऑन, आपकी कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, बिकॉज दिस वन इज रियल, मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूं। उसके बाद जो सेकंड सेट है, सेकंड सेंटेंस में जो सेकंड पार्ट है हमारा, जो सेकंड सेट है, उसके साथ अगर मैंने कंबिनेशन करना है तो 1 का आंसर भी 1 आएगा, 1.2 का आंसर भी 1 आएगा, 1.98 का आंसर भी 1 आएगा। अब ये 1 तो नहीं बना, इसको हम क्या बोलेंगे, इट्स मैनी 1, मींस ये 1 नहीं है, नॉट 1। अब इसका जो रिवर्स कंटेंट है वो क्या है? अगर मैं रिवर्स कंटेंट की बात करूं, कोई भी कंटेंट मैं उठा लूं, यहां पे मैंने कोई वैल्यू दे दी 1.1, 1.3, बिकॉज द वैल्यूज आर रियल। यहां पे नेचुरल नहीं है, रियल वैल्यूज की बात कर रहे हैं। अगर यहां पे नेचुरल होता तो हो सकता है आंसर कुछ और आता। यहां पे मैंने 1.7 दे दिया। अब ये वैल्यूज जो यहां पे नजर आ रही हैं, इनका कोई भी क्वेश्चन यहां पे नहीं है, इसका कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। मींस इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब भी मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास जस्ट एक इंटीजर वैल्यू आएगी, कभी भी डेसिमल का आंसर नहीं आएगा। मींस अगर मैं बात करूं कि y में से मैंने एक वैल्यू उठा ली 1.3 बिलोंग्स टू y, देयर इज नो वैल्यू which is related to 1.3 in x। यहां पे कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इट्स नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। जो फर्स्ट है वो क्या आ गया, नॉट 1 एंड नॉट ऑन टू, मीन्स नाइदर 1 नॉर ऑन टू। These are the 3 questions. In the next video, I will start with the question number 4.